Okay, so this is Learning Module 2, LM2 of Quantitative Methods QM. I would like you to think about it this way, that statistics, the way we know it, has always been taught with the help of runs in cricket matches, vegetable prices, throwing a dice, head or tail, playing cards, spade, and all that stuff. CFA curriculum mein, they are very focused that they want to teach statistics for the purpose of financial markets, for the purpose of investment management. And therefore, it would be good if at this stage you understand that why are they focusing on returns? Because you would be investing or you'd be taking choices about investing where. कौन सा स्टॉक बाय करे, कौन सा बॉन्ड बाय करे, कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करे. And whenever you take that decision, you will obviously focus on returns. And those returns would be certain or uncertain? Uncertain. And if they are uncertain, there is a risk involved. And the risk is also a function of the variability of returns. कि returns कितना उल्टा पुल्टा हो सकता है. So when we talk about returns and the variability of returns, indirectly you come to statistics. Because if you talk about, say, cricket and two batsmen, a batsman who is very stable, consistent, but does not score very high, another batsman who can get out at zero or score very high and very fast. So that is what we analyze. Similarly, in the case of investments, we try to analyze how much returns are possible, what is the risk involved. And isme you got to know statistics. So all the examples, all the discussion, they are carrying out with the help of statistics, with the help of returns. तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है? स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, उनको सब चीज़ नया दिखता है. बिकॉज द टेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट buyback, it is talking about dividend, it is talking about ex-dividend date, it is talking about convertible bonds, short-term securities, long-term securities, value stocks, growth stocks. ये सारे words तो नए है ना. तो दो तरफ से प्रेशर आता रहता है. नंबर वन, वी आर डूइंग स्टैटिस्टिक्स विच इज़ वेरी लाइट, एंड नंबर टू, वी आर हियरिंग सो मच ऑफ टर्मिनोलॉजी. तो वो टर्मिनोलॉजी को अगर फास्ट भागे तो कोई बहुत सिंसियर स्टूडेंट है तो एकेडमिकली उसको बैठा तो लेगा मेहनत करके कि इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आई एम रेडी. बट ही वुड एडमिट एट द एंड ऑफ द डे कि यार पता नहीं, पूरा होल पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है. एंड देयरफॉर वी आर नॉट रनिंग, वी आर स्टेइंग into the finance concepts which has been taught along with statistics. ठीक है? तो first chapter was returns on financial assets and instruments. Returns on financial assets and instruments, ये first chapter था, LM1. जिनका LM1 नहीं हुआ है उनको Quant Foundation की क्लास करके LM1 में आने का कोशिश करना चाहिए, depending upon your lifestyle and how much commitments you have. कल शाम को 6 PM पे there's a session on how to use AI tools, GPT, Claude, Gemini while studying for CFA Level 1. कैसे आपको इनको यूज़ करना चाहिए, उसका 6 PM पे सेशन है. तो if you are using it marvelously, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है, good. But if you are not using it, in that case, do attend the session. QM LM1 and Equity LM4. Equity LM4 हो गया होगा. उनको टेस्ट है इस वीकेंड में. टेस्ट बहुत सारा अनाउंस होता है. अगर कोई टेस्ट आपको नहीं देना है बिकॉज आपने वो चैप्टर नहीं किया है, जस्ट इग्नोर इट. यू डोंट हैव टू थिंक दैट उस टेस्ट का फिर क्या होगा. वो टेस्ट आप बाद में देंगे. वंस द टेस्ट इज क्रिएटेड, इट इज देयर इन योर दिस थिंग अकाउंट. यू कैन टेक इट व्हेनेवर यू वांट. समझ गए? विच एवर टेस्ट यू वांट टू टेक. बट इफ यू डोंट टेक टेस्ट,
तो मेरा दिमाग चलेगा और आपका टेस्टेबिलिटी होगा नहीं. बिलीव मी, रिटेंशन वुड बी लो एंड यू विल से एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी याद नहीं है. तो टेस्ट लेना जरूरी है. ठीक है ना? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. LM2. LM2 टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑन फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट and indicators. This is the name of the chapter. Types of returns on financial asset, financial instrument and indicators. Types of return on financial asset, financial instrument and indicators. People are thinking that I am going to discuss bilaterally with them. They'll keep on messaging and I will reply, Vedanti ये बोल रही है, आदित्य ये बोल रहा है. It doesn't happen that way. ठीक है ना? So you may waste your time by saying the same. I am not going to bilaterally deal with you. Types of returns on financial asset, financial instruments and indicators. Screen show नहीं हो रहा है क्या? That's bad. Okay, types of returns on financial asset, financial instruments and indicators. This is the name of the chapter. तो अपने को सबको पता है इसलिए पूछ रहा हूँ. If you buy stock, you may experience a price appreciation or price depreciation. Price बढ़ सकता है, price गिर सकता है. And you may get dividends. Correct? Capital distribution. तो स्टॉक में दो तरह का रिटर्न है. एक है प्राइस appreciation, depreciation और दूसरा है dividend. Let's call it dividend. Buyback भी हो सकता है. If you buy bond, once again you can experience price going up, price going down, bond में भी, and you will get regular interest payments which are called coupon. Regular interest payments which are called coupon. तो stocks में भी get price change plus dividend, bonds में भी get price change plus coupon. जो coupon और dividend है, they are called capital distributions. What are they called? Capital distributions. Dividend और coupon दोनों में से कौन सा discretionary है? डिविडेंड और कूपन में से कौन सा डिस्क्रिशनरी है? डिस्क्रिशनरी अगर वर्ड का मतलब नहीं पता, इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी पे करना है कि नहीं करना है. व्हाट इज इट? डिविडेंड. डिविडेंड इज डिस्क्रिशनरी, देयरफॉर इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन. बट कूपन इज कंपल्सरी, इट्स अ फिक्स्ड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन. देना ही पड़ेगा, नहीं दिया जाएगा तो इट्स अ लीगल डिफॉल्ट एंड द कंपनी कुड बी श्यूड. ठीक है? तो अपने फर्स्ट चैप्टर में भी किए थे कि टाइप्स ऑफ रिटर्न्स में कि सर रिटर्न्स दो तरह का है. एक है प्राइस रिटर्न, एक है कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्लियर है सबको? प्राइस रिटर्न, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन. और जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है इस चैप्टर में बोल रहा है दो तरह का है. एक है फिक्स्ड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है वेरिएबल कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन. फिक्स्ड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. प्लीज रिप्लाई वेदर इट्स फिक्स्ड और वेरिएबल. सुनना प्लीज. लार्सन एंड टूब्रो इश्यूज अ 10-year बॉन्ड. लार्सन एंड टूब्रो इश्यूज अ 10-year बॉन्ड. 10 साल का डिबेंचर इशू किया, मतलब आप लोगों से बोरो किया. अ बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द इश्यूअर बोरिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स. तो लार्सन एंड टूब्रो 10 साल का बॉन्ड इशू किया. सुनना उसका डिटेल्स क्या है. फेस वैल्यू इज 1000. कूपन रेट दैट यू विल गेट एवरी ईयर इज इक्वल टू repo rate plus 3%. What is it? Repo rate plus 3%. Repo rate का नाम सबने सुना होगा. Okay? क्या होता है? We'll come to it technically later. But repo rate plus 3%. क्या RBI repo rate announce करता है? जो भी repo rate है plus 3%, that is what you are going to get every year. ठीक है? तो 1 Jan को bond issue हुआ. The repo rate was 6%. तो 6 plus 3 equal to what? 9. 9% of 1000 कितना? 90. You will get 90 at the end of the year. Next year का 1 Jan, repo rate is 7%. 7 plus 3 what? 10. 10% of 1000 what? 100. You will get 100 at the end of the year. So when is the repo rate fixed? Beginning of the year या end of the year? Beginning. When is the repo rate fixed? Beginning. But when is it paid? End.
हर साल के बिगिनिंग में जो रेपो रेट है उस पर 3 ऐड किए, वो परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू 1000 वो एंड ऑफ द ईयर में मिलेगा। 10 साल का बॉन्ड है, लार्सन एंड टुब्रो ने प्रॉमिस किया इट विल पे। इज इट पॉसिबल दैट लार्सन एंड टुब्रो कैन डिफॉल्ट? CAN कैन, yes, it can default, but you know that Larsen and Toubro is a respectable large cap company or a doubtable small cap, okay? Agarwal and company, what is it? Respectable large cap company. So accordingly Larsen and Toubro का credit rating बहुत high है, there is very less chance it can default. It has never ever defaulted such that many people believe that it will not default. ठीक है? तो on the other hand there might be a not so known company, say by the name of Sandur Manganese, which is into mining. Sandur Manganese, तो माइनिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए उसको, वो बॉन्ड इश्यू किया 10 साल का, वही 10 साल का बॉन्ड इश्यू किया, 1000 फेस वैल्यू, कूपन रेट 14%, व्हाट रेट? 14%, तो 14% ऑफ 1000 आपको 140 140 140 140 140 140 मिलेगा। Larsen and Toubro was paying repo rate plus 3%. Sandur Manganese is paying 14% fixed coupon. So number 2, the nature of the coupons are different. Larsen and Toubro का coupon is floating. What is it? Floating. Sandur Manganese का coupon is what? Fixed. Larsen and Toubro का coupon is floating. Sandur Manganese का coupon is what? Fixed. रेपो रेट जो है ना इंडिया में वो रफली रेंजेस अराउंड 6%. ऑफ कोर्स नीचे भी जाता है 4% करीब, ऊपर भी 7% करीब, बट दैट्स द रेंज. तो लार्सन एंड टुब्रो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट से लगता है करीब 10% देगा. कितना? 10. बट संदूर मैंगनीज 14% दे रहे हैं. क्या उसको मन कर रहा है 14% देने का? तो उसका मन कर रहा है काश हम ज्यादा दें, तो उसका मन नहीं कर रहा तो वो क्यों 14% दे रहे हैं? बिकॉज वो उसी लायक है. बिकॉज वो उसी लायक है. लायक का मतलब है नालायक है. इसका मतलब संदूर मैंगनीज का क्रेडिट रेटिंग, उसका क्रेडिट रेटिंग इशूड बाय क्रिसिल, बाय इकरा वुड बी लो, से डबल बी. व्हाट? डबल बी रेटेड. while Larsen and Toubro का क्रेडिट रेटिंग में भी AAA प्लस. ओके, मे बी AAA, AA प्लस, whatever. तो हाई एज में है. although you don't know the sequence of the rating. I don't know बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस में मैंने मेंशन किया था क्या? मेंशन किया हुआ है क्या बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस में? क्वांट फाउंडेशन में भी है. ठीक है, AAA, AA, BBB, BBB ऐसे होता है रेटिंग्स. आपको सीक्वेंस तो समझ में आ रहा है? ठीक है. तो लार्सन एंड टुब्रो का बहुत हाई रेटिंग है. अकॉर्डिंगली द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज हाई और लो. लो, इनफैक्ट नेग्लिजिबल. संदूर मैंगनीज का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज व्हाट? हाई. सो इफ यू आर बाइंग संदूर मैंगनीज का बॉन्ड, यू आर टेकिंग क्रेडिट रिस्क. व्हाट रिस्क? क्रेडिट रिस्क. And if you are a rational person, you will only take risk if you are expected to earn what? Higher return. Why will you take risk? You will only take risk in search of higher return. Risk and return go hand in hand on an average. Risk and return go hand in hand on an average. ये on an average का मतलब क्या था? On an average का मतलब था सर, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है, दूसरी तरफ अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है, अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक है. दोनों में से कौन ज्यादा रिस्की है? अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक. तुम बाई करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, मैं बाई करता हूं अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक. एक साल वेट करते हैं. इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल दैट तुम एक साल में रिटर्न कमाएगा 8%, 8, और मैं एक साल में रिटर्न कमाऊंगा -20%. तुमने बॉन्ड बाई किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, मैंने बाई किया अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक. दोनों एक साल होल्ड किए. तुम बाई किए, तुमको रिटर्न मिला 8%, 8. योर 100 बिकेम 108. माई 100 बिकेम 80. 20 रुपया खो दिया. इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? Possible, 100% possible. I'm so surprised. Moktik Mukherjee, the last class you were sitting over there, I was so impressed. The brains are not running well. Wash your face. You are saying not possible. Forget about studies. Believe me. कोई ने कोई भी पढ़ाई किया और नहीं किया, उसको ये पता है कि ये पॉसिबल है. शेयर का दाम क्या गिरता नहीं है? शेयर का दाम गिरता है कि नहीं गिरता? इसके लिए तो कोई स्टडीज नहीं चाहिए, वरना शेयर मार्केट को रिस्की बोलते ही क्यों? तो इन दैट केस इसको देख के कोई बोलेगा बट सर यू सेड हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक में तो रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड में, और अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक में तो रिस्क है. तो आप ही तो बोले थे हाई रिस्क हाई रिटर्न. देयरफॉर आई मेंशन ऑन एन एवरेज. आई मेंशनड ऑन एन एवरेज वी एक्सपेक्ट दैट इट विल प्रोवाइड हायर रिटर्न.
We expect that it will provide higher return, but expectation is just an expectation. It has variations around it. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड जो है वो 10% में भी ±1% देगा. क्या बोला? ±1. नीचे की तरफ 9, ऊपर की तरफ 11, यही उसका औकात है. ठीक है, या मैंने 8 बोला तो 7 से लेके 9, 7 to 9 यही है. बट अदानी एंटरप्राइजेस का बॉन्ड नीचे की तरफ 30, ऊपर की तरफ 130. एक साल में डबल भी हो सकता है. नीचे की तरफ -30, ऊपर की तरफ 130. एंड आपको उस पर लालच आ रहा है कि यार जो ऊपर का स्कोप है, एंड देयरफॉर यू आर रेडी टू रिस्क द डाउनसाइड का रिस्क. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. ऑन एन एवरेज इफ यू सी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इक्विटी हैज प्रोवाइडेड द हाईएस्ट रिटर्न. नो गोल्ड, no real estate, no painting, no art objects, no bitcoin, no bond, no nothing. Highest return that has been provided is by equity as an asset class. Therefore when youngsters talk safety, हम तो bond में invest करेंगे, they do not understand the basics of the fact that you have a 50-year investment horizon. आपका age 20 टच कर रहा है, कम से कम 50-60 साल आप इन्वेस्ट करने वाले हो. ठीक है, तो इफ यू इन्वेस्ट प्रॉपरली, मार्केट्स में गो अप, देन मार्केट्स में गो डाउन, देन कम अप, एंड फिनोमिनल रिटर्न यू विल अर्न इन द इक्विटी एसेट क्लास. इट्स ऑल इक्विटी इक्विटी इक्विटी, बिलीव मी, एटलीस्ट इन इंडिया, ऑफ कोर्स विद सम बैलेंस फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी एंड लिक्विडिटी. सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर. ठीक है, दे आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट रिस्क, दे आर ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट रिटर्न्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये वो लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं चैप्टर में. ठीक है ना. तो ये मेरा इनिशियल एक पिकअप था चैप्टर का, बिकॉज आई कांट स्टार्ट इन अ वेरी बोरिंग मैनर. ठीक है, कि चैप्टर क्या है क्या नहीं है. लेट्स स्टार्ट क्लासिफाइंग द चैप्टर. टाइप्स ऑफ रिटर्न्स ऑन फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडिकेटर्स. तो चैप्टर में ब्रेकअप कर रहे चैप्टर का. ब्रेकअप नंबर 1, रिटर्न डिकम्पोजिशन. रिटर्न डिकम्पोजिशन यानी रिटर्न को तोड़ना. कैन आई हैव इट फ्रॉम यू? रिटर्न में 2 पार्ट्स है. व्हाट आर द 2 पार्ट्स? रिटर्न में 2 पार्ट्स होते हैं. व्हाट आर द 2 पार्ट्स? इनके आपको वर्ड्स याद आ रहे हैं, वहां पे लिखो, यहां बोलो. यस, एक तो प्राइस रिटर्न और एक कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन. लिखना नहीं है अभी, मन में सोचते रहो. प्राइस रिटर्न और कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन. सर हम ये वर्ड भूल गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो भी आप CFA बन जाएंगे, बिकॉज लिख के नहीं आना है. मल्टीपल चॉइस में रहेगा, आपको ध्यान आ जाएगा. इट इज नॉट अबाउट रिमेंबरिंग द वर्ड कि प्राइस रिटर्न कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो और कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का है? 2. वन इज फिक्स्ड, द अदर इज व्हाट? वेरिएबल. लार्सन एंड टूब्रो वाला बॉन्ड, रेपो रेट प्लस 3% वाज फिक्स्ड और वेरिएबल? वेरिएबल. संदूर मैंगनीज वाला बॉन्ड व्हिच पेज 14% इज व्हाट? फिक्स्ड. अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक, अगर वो डिविडेंड देता है, दैट इज फिक्स्ड और वेरिएबल? वेरिएबल. इट मे और मे नॉट पे, इट मे पे हायर, इट मे पे लोअर, इट्स वेरिएबल. समझ गए? So you do understand the meaning of fixed and variable. वो बस लिखना है इसके अंदर. Point number 1 is a formality. आप लोग को पता है, समझ गए? And please समझो, क्लास कर सारे के सारे क्लास 12 वाले स्टूडेंट, दिस प्रोग्राम इज नॉट अबाउट योर बीइंग एबल टू रिमेंबर एंड राइट एंड रिप्रोड्यूस कि ये चैप्टर में था 6 पार्ट, मेरे को याद है, तेरे को याद हो नहीं चाहिए, हमको याद है. तुम्हारे माइंड में एक बार चला गया, अपने आप ही मल्टीपल चॉइस पे राइट हो जाएगा. वी डोंट रिक्वायर यू टू रिमेंबर. ठीक है, तो सपोज आपका कोई लेवल 2 लेवल 3 का स्टूडेंट है, कोई जान पहचान का है, आप उसको इस चैप्टर का क्वेश्चंस दो, सारा राइट कर देगा, सारा का सारा क्वेश्चन राइट कर देगा. आप उसको बोलो इस चैप्टर में क्या क्या है, पता है क्या, या उसको बोलो मैं बताती हूँ, फिर नेक्स्ट डे पूछना पता है क्या, नहीं बता सकेगा. क्वेश्चन राइट करना इज अ डिफरेंट थिंग एज कंपेयर टू चैप्टर को याद करना, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स, बिकॉज 6 महीना पढ़ने के बाद वो लोग बोलते हैं सर कुछ भी याद नहीं है. दे आर ट्राइंग टू से जिस तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी याद करते थे ना, और याद रहता था चैप्टर वाइज चैप्टर, वैसे याद नहीं है, वैसे याद नहीं करना है. अच्छा, योर लाइफ इज गुड. याद है कि नहीं है, लेट द क्वेश्चंस टेल यू ना याद है कि नहीं है. दैट शुड बी द मेजर. ये मैं बार बार रिपीट करते जाऊंगा. ठीक है, तो नंबर 2, second part of the chapter,
फिक्स्ड एसेट लेंस, यानी अपने फिक्स्ड एसेट लिख दिया भूल के, फाइनेंशियल एसेट लेंस। तीन वर्ड्स दिए ना चैप्टर के शुरू में, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। तो लोग बोल रहे हैं चलो फाइनेंशियल एसेट के लेंस से रिटर्न का बात करते हो। अब उसके बाद क्या बात करने वाला तुमको पता है? किसके लेंस से? इंस्ट्रूमेंट के लेंस से। उसके बाद क्या बात करेगा? इंडिकेटर्स के लेंस से, अगर तुम चैप्टर बैठा ही रहा है तो, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट लेंस, इंस्ट्रूमेंट के लेंस से। नंबर 4, इंडिकेटर के लेंस से, ठीक है। एसेट के लेंस से, इंस्ट्रूमेंट के लेंस से, इंडिकेटर के लेंस से। नंबर 5, रिस्क एंड रिटर्न। फिर लास्ट में रिस्क एंड रिटर्न का डिस्कशन करेगा कि जो अपने बोले ना, हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉट पक्का हायर रिटर्न। रिस्क ज्यादा होने से रिटर्न पक्का ज्यादा नहीं होगा, बट ऑन एन एवरेज ज्यादा होगा। हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो रिस्क एंड रिटर्न, दिस इज व्हाट इज कवर्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। दोज हु हैव डन द फर्स्ट चैप्टर LM1, उनको फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स का थोड़ा बहुत मेमोरी होगा, ठीक है। तो वो मेमोरी वापस यहाँ कंटिन्यूड है। जो लोग फ्रेशर्स है, वंस अगेन मैं उसके बारे में बोलूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट ऑब्वियसली समवेयर 1 वीक 2 वीक में आप LM1 कवर कर लोगे, ठीक है ना। तो रिटर्न डिकम्पोजिशन ये वगैरह। लेट्स स्टार्ट एंड कंप्लीट द फर्स्ट वन, रिटर्न डिकम्पोजिशन। तो पहला पार्ट हो गया रिटर्न डिकम्पोजिशन। तो रिटर्न्स, 2 पार्ट, प्राइस रिटर्न, दूसरा पार्ट कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन का 2 पार्ट, फिक्स्ड, दूसरा वेरिएबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। और प्राइस रिटर्न का भी नेसेसरली 2 पार्ट करूं जानबूझ के, तो हो गया अप्रिसिएशन और या फिर डेप्रिसिएशन, यानी प्राइस गिर गया, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिक्स्ड का एग्जांपल यहां पे फिक्स्ड कूपन्स, जो बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है ना उसको कूपन बोलते हैं, ओके। बॉन्ड से जो इंटरेस्ट मिलता है, डिबेंचर से इंटरेस्ट, उसको कूपन्स बोलते हैं। माइट बी ए न्यू वर्ड, ओके, फॉर फ्रेशर्स, कूपन्स। क्यों कूपन बोलते हैं? क्योंकि एकदम हिस्टोरिक पीरियड में 100-150 साल पहले जब बॉन्ड स्टार्ट हुआ था, डिबेंचर्स, कंपनी स्टार्टेड बोरोइंग बाय इशुइंग सम सर्टिफिकेट। तो वो जो सर्टिफिकेट फिजिकल होता था, देयर वाज नो डीमैट, और वो जो सर्टिफिकेट है उसके साथ कूपन्स अटैच्ड होता था। जैसे कूपन, फूड कूपन्स होते हैं ना, तो कूपन्स में अटैच्ड विद डेट्स, समझ गए। और लोग क्या करते थे, जो डेट होता था कूपन का, उस दिन कूपन्स को डिटैच करके जाते थे और अपना पैसा लेते थे। तो सिंस हिस्टोरिकली उसका नाम कूपन पड़ गया, दे नेवर चेंज्ड इट, ओके। फिक्स्ड कूपन्स, जैसे फूड कूपन्स होते हैं, तो इट वाज लाइक इंटरेस्ट कूपन्स, ठीक है। सॉरी, और वेरिएबल में 2 एग्जांपल हो गया, एक हो गया डिविडेंड एंड फ्लोटिंग कूपन। डिविडेंड एंड फ्लोटिंग कूपन, ओके, डिविडेंड एंड फ्लोटिंग कूपन, ठीक है। सिंस यहाँ पे कुछ वैसे जानने का नहीं है, देयर इज नथिंग टू नो हियर, देयरफॉर जस्ट लेट मी ट्राई एंड आस्क यू, रिटर्न्स वाइज एक है गवर्नमेंट बॉन्ड्स,
दूसरा है इक्विटी यानी स्टॉक्स, और तीसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तीनों नाम बैठा लो मन में, एक है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एक है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और एक है स्टॉक्स यानी इक्विटी। तीनों में से ऑब्वियसली विच इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द हाईएस्ट रिटर्न? Equity expected to provide the highest return. It has the highest risk. If the company goes bankrupt, so obviously when everybody will queue up to get their hands on the assets of the company कि हमें पैसा दो, हमें पैसा दो, कंपनी बंद हो रही है, तो इक्विटी कहाँ खड़ा होगा? सबसे आगे या सबसे लास्ट में? सबसे लास्ट में। अगर कुछ बचा तो आपको मिलेगा। वैसा ही हर साल के इनकम में डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स का हक सबसे लास्ट में, और वो भी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड किया कि डिविडेंड दिया तो, ठीक है। तो इक्विटी हैज अ रेसिडुअल क्लेम बोथ टू द इनकम ऑफ द कंपनी एज वेल एज टू द एसेट्स लिक्विडेशन इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। तो इक्विटी इज द रिस्कीएस्ट एसेट क्लास दैट इज नोन टू पीपल। तो इक्विटी का सबसे ज्यादा रिटर्न होगा। उसके बाद तीन चीज था ना, एक था गवर्नमेंट बॉन्ड, एक था कॉर्पोरेट बॉन्ड और एक था इक्विटी। तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका होगा? इक्विटी, स्टॉक्स का। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इट इज एज पर रिस्क, ठीक है। इक्विटी विल ऑलवेज एक्सीड, विल जनरली एक्सीड कॉर्पोरेट बॉन्ड का रिटर्न्स, एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का रिटर्न विल जनरली एक्सीड गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न्स। नाउ लेट्स एंटर विद इन दैट। इक्विटी के अंदर स्मॉल कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स। इक्विटी के अंदर स्मॉल कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स। टेक योर टाइम। स्मॉल कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स। You should think which is more risky. You know what? Which is more risky? Small cap stocks are more risky. Therefore, generally expected है कि small cap stocks will provide a higher return than large cap stocks. But अगर multiple choice में आता है, empirically it has been proven that small cap stocks have always provided a higher return than large cap stocks. The answer is wrong. बह मत जाना। We expected to बोल रहे हैं, ठीक है। तो those who have done the LM1, उसमें एक वर्ड था SMB। क्या वर्ड था? SMB, small minus big. I never taught that SMB will always be positive, but SMB has been found to be positive for most of the human history. But it is not always positive. There have been periods and decades when SMB has been negative. तो मल्टीपल चॉइस रॉन्ग नहीं हो जाए, क्योंकि नॉलेज के बाद भी अगर मल्टीपल चॉइस रॉन्ग हो गया तो फायदा नहीं ना पढ़ने का। The yardstick is not knowledge, the yardstick is the multiple choice. I never said कि स्मॉल कैप का रिटर्न हमेशा लार्ज कैप से ज्यादा होगा। एक्सपेक्टेड टू ज्यादा है, बिकॉज स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क है। क्या रिस्क है? स्मॉल कैप का ट्रेडिंग हर समय हो रहा है या रुक रुक के होता है? रुक रुक के होता है। तो अगर आपने बाई किया आप फंस सकते हो। लैक ऑफ लिक्विडिटी, लैक ऑफ लिक्विडिटी। स्मॉल कैप में कांड ज्यादा हो सकता है। क्या? कांड यानी अनसिस्टमैटिक रिस्क। कोई फ्रॉड कर दिया, कोई क्या कर दिया, ठीक है, ये सब चीज ज्यादा हो सकता है। इसमें स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, वो लोग बोलते हैं लार्ज कैप में सर ज्यादा सुने। तुम ज्यादा सुना है बिकॉज तुमको पता ही नहीं भारत कितना बड़ा है। यू ओनली टॉकिंग अबाउट दैट राजेश एक्सपोर्ट्स 15 लाख करोड़, ठीक है। देयर आर सो मेनी स्मॉल कंपनीज जहां पे कांड होते जा रहे हैं, सिंस दे डोंट हैव अ लार्जर इम्पैक्ट, सो देयरफॉर इट डजंट हैपन दैट वे, यू डोंट नो अबाउट इट। तो स्मॉल कैप में ज्यादा वो रिस्क होता है। तो स्मॉल कैप जनरली एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ हायर रिटर्न देन लार्ज कैप, ठीक है, जनरली। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में हायर रेटेड बॉन्ड्स AAA, लोअर रेटेड बॉन्ड्स BBB। हायर रेटेड बॉन्ड्स AAA, लोअर रेटेड बॉन्ड्स BBB। किसमें ज्यादा रिस्क है? BBB। एंड देयरफॉर बाय लॉजिक lower rated bonds are expected to provide a higher return or lower return? Higher return than higher rated bonds. आप रॉन्ग कर ही नहीं सकते अगर रिस्क वाइज सोचोगे तो, बिकॉज रिटर्न का सोर्स इज रिस्क। You don't think about risk, you will make mistakes. You think about risk, you will never make mistake. In fact, fund managers are not managing return. There is no such chapter called return management. There is always a chapter or a syllabus or a course by the name of risk management. You manage the risk, returns तो अपने आप ही follow होगा, ठीक है। Once again, government bonds. Government bonds में long term bonds, short term bonds, long term bonds, short term bonds, ठीक है। Which bonds have a higher risk? Long term bonds. इसमें कई जन बोले नहीं,
जब मैं बोला लॉन्ग टर्म बॉन्ड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स विच बॉन्ड हायर रिस्क, बहुत जन बोले नहीं, बिकॉज उनको किसी में रिस्क नहीं लगा, ना लॉन्ग टर्म में ना शॉर्ट टर्म में। पॉइंट है कि आप रिस्क का मतलब केवल मान रखे हो पैसा मरने का रिस्क, कि कोई पैसा मार लिया, दैट रिस्क। रिस्क वो नहीं है। रिस्क इन फाइनेंस इज नॉर्मली वेरिएबिलिटी। व्हाट इज इट? वेरिएबिलिटी, कि वो बॉन्ड कितना डांस करेगा। एंड यू हैव बीन टॉट स्पेशली बिल्डिंग ब्लॉक में भी एंड ऑल्सो इन क्वांट फाउंडेशन, कोई का फर्स्ट क्लास है तो अलग बात है, कि प्राइस टुडे इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। Price is the present value of the future cash flow, means something divided by 1 plus r power n. 10,000 divided by 1 plus r power n, power n. So if that r changes and you have a big power sitting on the top, the volatility will be what? High. That's called maturity risk. What risk? Maturity risk. So long-term bonds are expected to provide a higher return than short-term bonds because they suffer from maturity risk. What is maturity risk? Sensitivity of the bond with respect to interest rate changes. Okay, 440 का वोल्ट, अगर 20 साल 30 साल का बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड, भारत सरकार का बॉन्ड है, इंटरेस्ट रेट टच करते ही वो बॉन्ड भागेगा शेयर्स के जैसे, समझ गए? बट वही अगर 3 मंथ टी बिल है, 91 डे का टी बिल, 91 डे का टी बिल, ट्रेजरी बिल, उसका कुछ वॉलेटिलिटी है ही नहीं, उसका कुछ वॉलेटिलिटी है ही नहीं, समझ गए? सो इवन दो अपने लास्ट पार्ट का बात कर लिए, रिस्क एंड रिटर्न, बिकॉज वो और नेचुरल था, तो इट इज नॉट नेसेसरी डेट वहां जाके उसका बात होगा, ठीक है? जितना हायर रिस्क है उतना भी एक्सपेक्ट हायर रिटर्न, ठीक है? इक्विटीज फिर से पूछ रहा हूं, अकॉर्डिंग टू योर कॉमन सेंस, आपने पढ़ा नहीं है, लाइटन योर सेल्फ, लाइटन एंड थिंक। शेयर मार्केट इज जनरली एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्राइस रिटर्न और dividend return, which is generally the dominating component in the share market. Price का change या dividend, which one? Price. There are hardly people you will find जो लोग dividend के लिए share buy करते हैं, although होते ऐसे और बुद्धिमान लोग होते हैं, but otherwise when you talk about the share market, the focus is on share का दाम कहाँ जाएगा। तो once again ये multiple choice और chapter क्या सिखाएगा अपने को, कि उसमें लिखा हुआ और तुम 4 बार पढ़ रहे हो, हाँ I have to remember, it is naturally new. When we talk about the equity markets, the dominating component is price return. Dominating component is price return. ठीक है तो? When you talk about the government market, government bond market, एक बार पहले government bond market का बात कर रहा हूँ. The dominant component is the capital distribution. Which? Capital distribution. Okay, capital distribution is the dominant component in the case of government bond. Maybe I can disagree in the case of very very long term government bond, 30 साल 40 साल का government bond में price return may be dominant, but then they don't ask it that way. वो लोग पूछेंगे bond market में ज़्यादा dominating क्या है? Capital distribution, price change नहीं. Stock market में dominating क्या है? Price return. समझ गए? dominating वो पूछेंगे वो लोग, because वो लोग share किया है write up में. Corporate bond, on the face of it, on paper, corporate bond provides higher return, 14% instead of a government bond 6%. 14 6 लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है यार, ये बोल रहा है 14, ये बोल रहा है 6, बट ये तो ऑन पेपर है। उसके बाद ये पैसा मार लिया, गया प्रिंसिपल ही गया तेरा। सो दे आर ट्राइंग टू से इन कॉर्पोरेट बॉन्ड डू नॉट फॉरगेट डिफॉल्ट, ट्राई टू नॉट जज कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑन पेपर जो लिखा हुआ है। There is a certain default traditionally, factor in the default and the returns are much lower as compared to what is on paper. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, the returns are much lower as compared to government bond because we discussed risk ज़्यादा किस में, government में या corporate में? Corporate में, तो therefore expected return तो corporate से ही ज़्यादा है, but उतना भी ज़्यादा नहीं है जो उसके पेपर में लिखा हुआ है, उतना भी ज़्यादा नहीं है जो उसके फेस पे लिखा हुआ है, उससे कम है। बिकॉज आप जब एसेट एलोकेशन करोगे ना, कि मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूं और मेरे पास अगर एक कॉर्पस है 10 करोड़ का एंड मेरा एक सर्टेन रिस्क एपेटाइट है, एक सर्टेन रिस्क एपेटाइट, बाय माय रिस्क एपेटाइट आई मे डिसाइड टू इन्वेस्ट से 7 करोड़ इन इक्विटी मार्केट्स। इन व्हाट? इक्विटी मार्केट्स। बाकी बचा 3 करोड़, 3 करोड़ में से आई मे डिसाइड टू इन्वेस्ट 2.5 करोड़ इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड 50 lakhs इन गवर्नमेंट बॉन्ड। वाई? बिकॉज मेरे को दिखा कॉर्पोरेट बॉन्ड का 14 और गवर्नमेंट बॉन्ड का 6, तो मैं 2.5 करोड़ दे दिया, 2.5 करोड़ इन कॉर्पोरेट।
बट दैट इज अ मिस्टेक. आई शुड हैव अंडरस्टूड कॉर्पोरेट बॉन्ड का सर जो लिखा हुआ है वो मत देखिए, थोड़ा सा तो डिफॉल्ट का माइनस करके देखिए ना, तो वो 14 के बदले आएगा 11 या 10. अब जब 10 और 6 है तो आई वुड नॉट हैव डिवोटेड 2.5 and 0.5, आई वुड हैव डिवोटेड 2 and 1. समझ गए? 1.5 1.5. तो मैं वो कंसिडर करता. तो रॉन्ग एसेट एलोकेशन होगा अगर आप ऑन पेपर रिटर्न देख के कॉर्पोरेट बॉन्ड का एसेट एलोकेशन कर रहे हो. ये वर्ड अभी तक क्लासेस में बहुत कम बार यूज हुआ है, एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन, ठीक है? तुम्हारा आने वाला 3 साल एकेडमिकली, ठीक है, और पूरा जिंदगी इज गोइंग टू जस्ट लिव एंड डाई इन दिस वर्ड एसेट एलोकेशन. How much to invest in equity, how much in real estate, how much in corporate bonds, how much in government bonds. ठीक है? तो that is the most important decision in the life of every person, every institution. ठीक है? And that is made on the basis of risk and return. Risk and return. जिसका foundations are there in these chapters. ठीक है ना? Okay. So based on what I spoke right now, what can we write over here? Let's do that. तो लिख रहे हैं अपने certain observations, certain observations. So certain observations में number 1, risk and return go hand in hand. Full stop. Next slide. Higher the risk, comma, higher the expected return. Most important word है यहाँ पे expected, और expected हमेशा true नहीं होते हैं. Higher the risk, higher the expected return. Not, यहाँ लिख रहा हूँ, not realized return. Not realized return. Important please. ओके, मिस्टेक नहीं कर दे. रिस्क ज़्यादा है तो रियलाइज्ड रिटर्न ज़्यादा होगा, नहीं माने इट इज़ नॉट श्योर. रियलाइज्ड रिटर्न इज लाइक वंस, एक बार क्या होता है. एक्सपेक्टेड जो ऑन एन एवरेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. हायर द रिस्क, हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉट रियलाइज्ड रिटर्न. रियलाइज्ड इज पास्ट टेंस. कि साहब बोलेंगे ज़्यादा रिस्की, अब बाई कर लिए, देखिए डूब गया, पॉसिबल है. ठीक है? पॉइंट नंबर 2, ओइंग टू पॉइंट नंबर 1, owing to point number 1 की वजह से, owing to point number 1 dash, return on equity greater than corporate bond greater than treasuries. When we say treasuries, इसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का दूसरा नाम है ट्रेजरीज. कोमल मंडल इज सेइंग हाई टू ऑल ऑफ अस. हाय कोमल. हाँ बोल रही है वो, हाय. अपने सब हाय बोल रहे थे उसको. रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन कॉर्पोरेट बॉन्ड ग्रेटर देन ट्रेजरीज. उसके बाद ये फर्स्ट बुलेट था. सेकेंड बुलेट, रिटर्न ऑन स्मॉल कैप ग्रेटर देन रिटर्न ऑन लार्ज कैप. प्लीज मल्टीपल चॉइस रॉन्ग मत कर देना. आई नेवर सेड दैट स्मॉल कैप का रिटर्न हमेशा लार्ज कैप से ज्यादा होगा. आपका मल्टीपल चॉइस रॉन्ग हो जाएगा. वी आर सेइंग ऑन एन एवरेज. ऑन एन एवरेज कितने बार बोलो, ठीक है? ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं. एक्सेप्शंस आर देयर. सर क्या पास्ट में ऐसा हुआ है कि लार्ज कैप का रिटर्न स्मॉल कैप से ज्यादा है? ऑफ कोर्स हुआ हुआ है. 5-5 साल 10-10 साल हुआ है. ठीक है? हर एक चीज डिक्टेट करना पॉसिबल नहीं होगा. थर्ड बुलेट, return on lower rated corporate bonds, lower rated corporate bonds, okay, double B, triple B types, greater than return on higher rated corporate bonds. Okay, return on lower rated corporate bonds greater than return on higher rated corporate bonds. क्रेडिट रिस्क का स्मेल आ रहा है यहाँ पे. क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, कि लोअर रेटिंग में डिफॉल्ट हो सकता है. सर क्यों फालतू में इन्वेस्ट करेंगे? केवल इसीलिए तो, बिकॉज वो ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं. रिटर्न ऑन लोअर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ग्रेटर देन रिटर्न ऑन हायर रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
greater than return on short term government securities. ये हैंड को गेट मिनट आप लोग लिखो, रिटर्न ऑन शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. Return on long term government securities greater than return on short term government securities. Okay, I hope you are writing. Return on long term government securities greater than return on short term government securities. ठीक है. नोट, do not go by the return on corporate bonds as per paper. जो लिखा हुआ है उस पर मत जाइए. Do not go by the return on corporate bonds as per paper, comma, they are prone to default risk. They are prone to default risk. फुल स्टॉप. दो टर्म्स बताने का मौका मिल रहा है जो इस चैप्टर में दिया हुआ नहीं है, बट बहुत जगह काम आएगा. क्यों वो मौका छोड़ूं? ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उसका मैथ्स वाइज वो बता रहा हूं. एग्जाम्पल, बॉन्ड issued by Sandur Manganese. Bond issued by Sandur Manganese, rating BB. जिन लोग को रेटिंग का थोड़ा सा आइडिया है, एक बार मैं लिखा नहीं सकता हूं पर मुंह से बोल सकता हूं. सबसे टॉप होता है AAA, फिर AA, फिर A, फिर BBB. स्टॉप. BBB तक होता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड. विच ग्रेड? इन्वेस्टमेंट ग्रेड. BBB से नीचे आते ही इट बिकम्स जंक, मतलब हाईली स्पेक्युलेटिव. ठीक है, तो ये जो BB लिखाया ये बहुत खराब रेटिंग हो गया बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं है, उसके नीचे. बॉन्ड्स इश्यूड बाय संदूर मैंगनीज, रेटिंग BB. कूपन रेट 14%. यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज एक्सपेक्टेड यील्ड 14%. बिकॉज बॉन्ड में और भी डायमेंशंस होते हैं जो मैंने सिखाया नहीं है, तो राइट नाउ जो कूपन है उसी को यील्ड मान रहा हूं. एक्सपेक्टेड यील्ड 14%. नेक्स्ट स्लाइड. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. 8%. Loss given default 40%. तो मॉडल्स होते हैं क्रेडिट रिस्क के जिसके हेल्प से अपने किसी भी कंपनी का रेटिंग देख के और उसका फाइनेंशियल्स देख के, फाइनेंशियल्स मतलब पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट देख के, स्टडी करके अपने उसका चांस ऑफ डिफॉल्ट निकाल सकते हैं. तो 8% चांस है ये पैसा मारेगा. कितना चांस है? 8%. ठीक है, तो ऑफ कोर्स यू कुड हैव अ डाउट से 8% कैसे आया, मॉडल से आया. ठीक है, दैट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ओवर हियर. एंड अगर वो पैसा मारा, इफ इट डिफॉल्ट्स, तो जाहिर है उसको शू करेंगे इन द कोर्ट्स टू रिकवर आवर मनी. तो इन दैट केस जब वो शू करेंगे तो ये बोलना चाह रहा है 60% रिकवर हो जाएगा. कितना रिकवर हो जाएगा? 60. तो डूबेगा कितना? 40. 40 is the loss given default. If it defaults, we would be able to recover 1% में 60 पैसा. ठीक है, we will lose 40 पैसा.
लॉस गिवन डिफॉल्ट, ये दोनों के दोनों क्रेडिट रिस्क मॉडल से आता है। सर वो क्या क्रेडिट रिस्क मॉडल्स अपने करिकुलम में है? ऑफ कोर्स है, लेवल 2 में है वो क्रेडिट रिस्क मॉडल्स अपने करिकुलम में, ठीक है। और जो फिक्स्ड इनकम है उस पर काफ़ी डिस्कशन है उनका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट 8%, लॉस गिवन डिफॉल्ट 40%। नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर एक्सपेक्टेड लॉस, इसको बोलते हैं EL, एक्सपेक्टेड लॉस EL इक्वल टू PD इंटू LGD। एक्सपेक्टेड लॉस EL इक्वल टू PD इंटू LGD, तो 0.08 इंटू 40 इज वॉट? 0.08 इंटू 40 इज वॉट? 3.2%। 0.08 इंटू 40 is 3.2%. Next line, therefore expected return equal to 14 minus 3.2, कितना? 10.8%। ओके, ये जो मैथ्स मैंने यहाँ पे करवाया है, ये मैथ्स इस चैप्टर में एकदम भी नहीं है। मैं रिपीट, ये मैथ्स इस चैप्टर में नहीं है, बट इजी मैथ्स था, तो बिकॉज ऑफ विच मौका मिला बता दिया। आपका PD LGD सुना हुआ है, कितने जगह काम आएगा मेरा PD LGD का वर्ड बात किया हुआ, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ विच वी डिड द सेम। इस चैप्टर में ये मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो 10.8%। ये लोग का क्या लिखा हुआ है? ये लोग का केवल ये लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड का पेपर रिटर्न पे मत जाना। तो जो लैंग्वेज था मेरा डू नॉट गो बाय, उसका हिंदी क्या हो गया? पेपर रिटर्न पे मत जाना, ठीक है। तो बिकॉज उनमें डिफॉल्ट हो सकता है, बस दैट्स इट। वो लोग थियरी लिख के छोड़ दिया, मैंने जरा सा उसको मैथमेटाइज कर दिया कि देखो 14 नहीं है 10.8 है, तो डू नॉट गो बाय द पेपर रिटर्न, ठीक है। फैक्टर इन द एक्सपेक्टेड लॉस एंड देन ट्राई टू डिसाइड हाउ मच टू पुट मनी, ठीक है। लिख दो नेक्स्ट लाइन। सो डू नॉट गो बाय पेपर रिटर्न, do not go by paper return. Please account for expected loss due to default. Please account for expected loss due to default. And you will find that expected return is lower than the paper return. Expected return is lower than the paper return. You will find that the expected return is lower than the paper return. ठीक है, सिंस ये पॉइंट हाईलाइटेड है टेक्स्ट में, मेरे को लगता है टेस्टेबल है, तो 2 बार भी बोलना पड़ा तो कोई हर्ज नहीं है। अभी बता दिया, वापस से पॉइंट नंबर 2, 3 किस में जाएंगे तो वहां वापस बता देंगे। ओके ओके, तो आई थिंक इट इज, ओ सॉरी, 1-2 पॉइंट और बोले थे वो भी क्लियर कर ले। पॉइंट नंबर 3, क्या चल रहा है अपना फ्लो? 1 मिनट, फ्लो क्या चल रहा था? आई फॉरगॉट। गोइंग टू पॉइंट नंबर 1, हाँ ठीक है। पॉइंट नंबर 3, which is the dominating component? Which is the dominating component? Which is the dominating component of return? Which is the dominating component of return? इक्विटी में क्या डिस्कस किए? इक्विटी में व्हाट इज द डोमिनेटिंग कंपोनेंट? प्राइस रिटर्न या कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन? प्राइस रिटर्न, प्राइस रिटर्न। नेक्स्ट बुलेट, एंड बॉन्ड्स में विच इज द डोमिनेटिंग कंपोनेंट? कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ऑल्दो लिखे बहुत कम है पर बोले बहुत ज्यादा है, तो because of which, to change the monotony of the class, okay, we just see whether it is possible for us to accomplish certain multiple choice questions. It changes the track.
So the first question which is there on screen, an analyst is classifying the sources of return available to investors across different asset classes, different financial assets. Which of the following best describes the two main sources of return? Which is the answer? A. Price return and capital distribution return. ठीक है? Since हमने randomly question try कर रहे हैं, इसलिए जो बाकी options दिए हुए हैं, कभी कभी बाकी options काम के होते हैं, कभी कभी बाकी options just for the sake of it दिए रहते हैं. यहाँ पे जो बाकी options हैं वो B और C दोनों ही काम के हैं knowledge wise. आप लोग में से बहुत जन ऑप्शन नंबर C के बारे में पूरा जानते हैं, सही है? ऑप्शन नंबर C के बारे में आप लोग काफी लोग पूरा का पूरा जानते हैं. यू हैव कंप्लीट नॉलेज. एम आई करेक्ट? ऑप्शन नंबर C के बारे में कि नॉमिनल रिटर्न इज अलोंग विद इन्फ्लेशन, रियल रिटर्न इज व्हाट? एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन. नॉमिनल रिटर्न जो है विद इन्फ्लेशन है, रियल विदाउट इन्फ्लेशन है. जो लोग नहीं जानते हैं दे शुड बी नोइंग. इसको समझाने के लिए कोई हर्ज नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन. अभी अपने डिस्कस करने वाले बाद में फाइनेंशियल एसेट, फुल स्क्रीन करना प्लीज. अपने डिस्कस करने वाले फाइनेंशियल एसेट. तो फाइनेंशियल एसेट जो है इज समथिंग ऑफ वैल्यू विच वी कैन इन्वेस्ट. उसको कैटेगराइज किया गया है ब्रॉडली इनटू कैश, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम एंड हाइब्रिड. क्या बोला? कैश, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और हाइब्रिड. मेरे ख्याल से तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी डाल सकता था उसके अंदर, बट अगला नहीं डाला है. कैश, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और हाइब्रिड. कैश, कैश इज अ फाइनेंशियल एसेट. तो कैश में ऑब्वियसली चीपनेस पे जाएं तो दे आर टॉकिंग अबाउट कॉइन्स, ऑफ कोर्स दे आर टॉकिंग अबाउट नोट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स. क्या बोला? नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स. किस डिपॉजिट का बात कर रहा हूं? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट यू नो, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव आस्क्ड. 3 तरह का डिपॉजिट होता है ना बैंक्स में, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और करंट अकाउंट. तो मैं बोला नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट किसका बात कर रहा हूं? करंट अकाउंट. जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है दैट इज कैश. व्हाट इज दैट? कैश. जो पैसा उसमें पड़ा हुआ है करंट अकाउंट में, वो पैसा कैश का डेफिनेशन में आता है. इट डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट. ओके तो कैश के डेफिनेशन में कॉइन्स आ गया, नोट्स आ गया एंड नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स आ गया. नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, सेविंग्स अकाउंट को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अपने करंट अकाउंट को ले रहे हैं. नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स, ये कैश. इफ यू होल्ड कैश, इफ यू होल्ड कैश you have high liquidity or low liquidity or highest liquidity. highest. कैश के ऊपर लिक्विडिटी का कोई लिमिट नहीं है. हाईएस्ट लिक्विडिटी बट यू हैव नो रिटर्न. जब मैंने बोला नो रिटर्न तो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स क्या है बताना. मैं ट्विस्ट कर रहा हूं लैंग्वेज को. लैंग्वेज नंबर 1, कैश प्रोवाइड्स नेगेटिव रियल रिटर्न. ऑप्शन नंबर 2, कैश प्रोवाइड्स जीरो रियल रिटर्न. फिर से सुन लेना, कैश प्रोवाइड्स नेगेटिव रियल रिटर्न. ऑप्शन नंबर 2, कैश प्रोवाइड्स जीरो रियल रिटर्न. टेक योर टाइम एंड आंसर. कैश का नेगेटिव रियल रिटर्न है या कैश का जीरो रियल रिटर्न है? नेगेटिव इज द आंसर बिकॉज कैश का नॉमिनल रिटर्न जीरो है. कैश का रिटर्न क्या है? जीरो. और इन्फ्लेशन हो गया 4%. मेरे पास कैश था 10 लाख, साल के एंड में भी 10 लाख है, मैं क्या कमाया? जीरो. माइनस नहीं है, जीरो है, तो 0%. बट उस दौरान चीजों का दाम बढ़ गया. प्राइसेस ऑफ गुड्स हैव गॉन अप बाय 4%. सो इफ आई गो टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट 10 लाख से, विल आई बी एबल टू बाय दोज गुड्स व्हिच आई वाज एबल टू बाय 1 ईयर अर्लियर? नो. इसका मतलब माय परचेसिंग पावर हैज गॉन डाउन. इसका मतलब माय रियल रिटर्न इज नॉट जीरो, इट इज नेगेटिव. इट इज व्हाट? नेगेटिव. Understood? Nominal return is zero, real return is negative. Nominal return is zero, real return is negative. ठीक है? Because कई बार nominal real थोड़ा boring लग जाता है. It's necessary that क्यों इतनी जगह लिखा रहता है? Because even after the name कि आपके बैठ गया nominal मतलब including inflation, real मतलब excluding inflation, ये तो words बोल रहे हो आप इंडियन एग्जाम के जैसे कि देख मेरे को बोलना आता है, तेरे को बोलना आता है, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को.
मेरे को मतलब है तो उसका इम्प्लीकेशन जानते हैं, ठीक है। तो होल्डिंग कैश हैज दैट नेगेटिव रियल रिटर्न, अ जीरो नॉमिनल रिटर्न, ठीक है। तो हद तब हो गया था जब कैश started having negative nominal return. क्या बोला? Negative nominal return, which happened after the 2008 GFC, global financial crisis के बाद, in countries like Japan, Switzerland, and some other nations. It was the fact that अगर आप current account में पैसा रखोगे 10 लाख तो आपका 1% इंटरेस्ट लगेगा, 10 लाख रखोगे तो आपको 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सर हम नहीं रखेंगे, तो रख ले अपने घर पे, देखे तेरा घर कितना बड़ा है, बिकॉज अपने 10 लाख बिलियन डॉलर्स बोल रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड प्लस कन्वीनियंस के लिए, पेमेंट्स के लिए रखना ही पड़ता है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन दैट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बिकेम नेगेटिव। You put 10 lakhs, you have to pay 1%. Plus you will suffer inflation 3%. So accordingly, -1 and -3 becomes what? -4, approximate relation. Exact मेरे को पता है क्या होते हैं. Got it? But otherwise, that was an exception. Just बोलने के लिए बोलना जरूर चाहिए. ठीक है? COVID, another disruption showed us once again what could not have imagined in Indian history. Well, oil prices became negative. Where oil prices became negative, whatever your age was, definitely ये सब talks चल रहे थे बाजार में, सुनाने में, and घर पे बातें चल रही थी, याद तो हो गए। Oil prices became negative. Actually, that which became negative was oil का derivative price. Which price? Derivative. Oil का futures, but a forward contract on oil, it became negative. Okay, because of storage factors. We'll discuss that in the context of जहाँ पे जब वो प्लेस आएगा तब डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग। ठीक है, अभी यू आर अवेयर और नॉट, विंबलडन स्टार्ट हो गया कि स्टार्ट होने वाला है? मेरे ख्याल से विंबलडन स्टार्ट होने वाला है। लॉन टेनिस का बात कर रहे हैं तो विंबलडन में जो सामने का सीट्स होता है ना, उसके अगेंस्ट में डिबेंचर्स इश्यू होता है। विंबलडन में सामने वाला जो सीट्स है उसके अगेंस्ट में डिबेंचर्स इश्यू होता है। ठीक है, यू बाय द डिबेंचर्स and you have the right to those seats for the coming 5-7 years. It is a financial asset which is traded in the secondary market. यानी वो बाजार में बिकता है जैसे स्टॉक बिकता है, because it has that thing of value. The value of that seat obviously does not depend upon the leather seat or the cover seat or what. Okay, so in short, I am trying to explain to you that you are doing finance, you are specializing in it. Everybody who is not doing finance is ultimately come to this area. आना तो पड़ेगा ही, ठीक है, बिकॉज मनी के बिना कुछ नहीं चलने वाला है। एनीवेज, तो नॉमिनल और रियल रिटर्न क्लियर हो गया। रियल रिटर्न मतलब एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, एंड मैंने कैश का एग्जांपल दिया उसमें। आप कैश के एग्जांपल सोचोगे एकदम डायरेक्ट हिट करेगा कि क्या बोलना चाह रहे थे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा कैश को ड्रैग करते हैं। मेरे पास कैश है 10 लाख, मेरे को समझ में आया सा उसका तो नेगेटिव रियल रिटर्न होगा, तो मैंने सोचा चलो कैश को इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं नियर कैश पे जाता हूँ, नियर कैश, कैश का भाई। तो कैश का भाई कुड बी एक तो सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट वगैरह, बिकॉज अगर तुम सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हो जब चाहे ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं? यस, 25 बार नहीं कर सकते एक बार में, बट अदरवाइज लिक्विड तो है ही, सेविंग्स अकाउंट का पैसा वी कैन ड्रॉ। ठीक है, दैट्स नियर कैश। वैसे ही यू कैन पुट योर मनी इन लिक्विड फंड्स। व्हाट लिक्विड फंड्स आपने सुना होगा? तो लिक्विड फंड्स आर म्यूचुअल फंड्स एंड दे आर पोजिंग द बिगेस्ट थ्रेट टू द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में इतना जोर का फाइनेंशियलाइजेशन हो गया डीमैट माने वो डिमोनेटाइजेशन के बाद 2016 के बाद, दैट पीपल हैव अंडरस्टूड दैट अपना पैसा बैंक में तो रखना ही नहीं चाहिए। तो एवरी पर्सन दे थिंक अबाउट सैटरडे संडे भी मेरा पैसा बर्बाद क्यों हो, काश वो पैसा कुछ कमाए। तो अगर लिक्विडिटी भी चाहिए तो इन दैट केस लेट्स पुट इन लिक्विड फंड, एट द क्लिक ऑफ अ बटन यू विल गेट योर मनी बैक। व्हाट इज द इश्यू? समझ गए? तो ये जो लिक्विड फंड होते हैं या जो सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट होते हैं, दे आर नियर कैश, दे आर नियर कैश। They usually offer zero real return. क्या बोला? Zero real return. इसका मतलब nominal return equal to inflation. Nominal return equal to inflation.
as per the contract between Reserve Bank of India and Government of India, as per a contract, written contract, inflation in India is supposed to range around 4%. 4 is the target. US Fed is 2%. We are not a developed economy. Okay, we are a growth economy. A growth economy has to sustain higher inflation. 4% is the target with a band of plus minus 2%. With a band of plus minus 2%. तो नीचे की तरफ 2, ऊपर की तरफ 6. And that cannot be breached for 3 consecutive quarters. If it is breached, RBI has to sit and explain because the contract has been breached. India has marvelously managed inflation. Inflation levels have been low, the targets have been achieved, unlike US जो बड़े लोग हैं ना, जहाँ पे the target is just for the purpose of target, 2% never reaches. And वो अलग बात है, when it reaches, तब US का अलग ही हाल हो जाएगा, down. Because all the growth will be gone anyways. तो मेरा बोलने का मतलब ये सेविंग्स अकाउंट में 3.5-4% मिलता है, सुना ही होगा आपने. सेविंग्स अकाउंट में क्या मिलता है? 3.5-4%. आप लिक्विड फंड में लगाओगे उस पर भी 3.5%, और इन्फ्लेशन क्या है 4, तो मैंने रियल रिटर्न क्या बोला? 0. रियल रिटर्न इज 0. समझ गया? तो यू आर गेटिंग लिक्विडिटी बट यू आर गेटिंग 0 रियल रिटर्न. यू आर एबल टू प्रिजर्व परचेसिंग पावर. लैंग्वेज सही है गलत है? यू आर एबल टू प्रिजर्व परचेसिंग पावर. मैंने बोला प्रिजर्व. यू आर एबल टू प्रिजर्व परचेसिंग पावर. तुमने 100 लगाया था, 104 हो गया, सामान खरीदने गए, वही खरीद पाए जो पहले 100 से खरीद पाते. तो रियल मायने में 1 पैसा नहीं कमाए. ठीक है? एंड हेंस यू डिसाइड टू गो नॉट फॉर कैश का भाई, बट एकदम ही अलग, टू गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ठीक है? तो इनफैक्ट टी बिल्स जो है, टी बिल्स, सॉरी बोलना भूल गया, टी बिल्स इज नियर कैश. टी बिल्स इज नियर कैश. टी बिल्स 3 मंथ टी बिल, 91 डे टी बिल्स है, तो 91 डे टी बिल में पैसा लगाएंगे, कोई रिस्क नहीं है. अंडरस्टूड? दिस अ लिक्विड मार्केट, जब चाहे बेच सकते हैं. 91 डे से पैसा आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, टी बिल्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा. दे आर ऑल नियर कैश which provides 0 real return. As soon as you want higher real return, you have to go for long-term bonds, corporate bonds, equities, real estate, commodities, and so on. Understood? You have to go for these. And there the risk window opens. You are obviously having a scope of positive real return with the risk that it could really be negative. ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्कोप था मेरे पास ABC में स्पेंड करने का. इसमें क्या होता है देखो, हाउ डू आई प्ले विद इट. मेरे को पता है 80% ऑफ द ऑडियंस ड्यूरिंग द क्लास, उनको नॉमिनल और रियल का मतलब पता है, और मैं फिर से नॉमिनल रियल का मतलब बता रहा हूं जो कि नए स्टूडेंट्स को काम आएगा. ठीक है? बट एट द सेम टाइम वो 80% जनता दुखी हो जाएगी, टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंगली इट हैज टू बी टॉट इन अ डिफरेंट फ्लेवर, जिनसे उनको ही मजा आएगा. अच्छा वो बता दिए. दिस इज व्हाट हैपेंस इन क्लास, कि उसी चीज को डिफरेंट फ्लेवर से बोलना. Okay, so that the double triple layering goes on. बीच वाला पार्ट, ऑप्शन नंबर बी, सिस्टमैटिक रिटर्न एंड अनसिस्टमैटिक रिटर्न. वहां पे लाइव क्लास में बहुत सारे और कमेंट्स आते रहते हैं. ठीक है ना? मतलब ऑब्वियसली यू ऑल आर आल्सो सिटिंग ओवर हियर फिजिकल क्लास में, आप लोग के मन में बहुत सारा फील आता रहता होगा ना. फील को आप लोग बोल नहीं पा रहे हो. ये लोग बोलते रहते हैं सर व्हाट अबाउट टैक्सेस ऑन रिटर्न, व्हाट अबाउट टिप्स. गाना याद आ रहा है इन लोग को. ठीक है? तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ कि बच्चा बोल रहा है, नादान बोले. अभी ऑप्शन नंबर बी, सिस्टमैटिक रिटर्न एंड अनसिस्टमैटिक रिटर्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और हमने क्लासेस में कमती बोला है इसके बारे में. सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिटर्न, ब्यूटीफुल, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहला बात तो है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिटर्न नहीं होता है, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है. क्या होता है? रिस्क. ओके, रिस्क होता है, सॉरी रिस्क होता है, रिस्क. तो एक कंपनी है जिसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजी. क्या नाम है? केन्स टेक्नोलॉजी. KAYNES होगा नाम उसका, केन्स टेक्नोलॉजीज. ठीक है? दिस केन्स टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, व्हाट्स द शेयर प्राइस, चेक प्लीज. ये मौका है, यू आर बिकमिंग मोर इक्विटी savvy. Kaynes Technology. What is the share price of Kaynes Technology? हाँ, फिर से 3289. ठीक है? तो 3300 इसका प्राइस है Kaynes Technology का. Can you check the all time high low? Can you check the all time high low?
तो उसका दाम 3,300 है। किसी को भी बोरिंग नहीं सोचना चाहिए, बोरिंग हो रहा है एकदम भी नहीं, यही तुम्हारा लाइफ है, इसलिए तुम CFA कर रहे हैं। और अगर तुम इसलिए नहीं कर रहे, तुम गलत कोर्स ज्वाइन कर लिया है। आज का हाई नहीं भाई, जिंदगी भर का, ऑल टाइम। ओके, से 52 वीक रेंज बता रहा है, 52 वीक रेंज इन 7705, ऑल टाइम हाई 7822। 52 वीक का पकड़ते हैं, एक साल में 7705 था। एक मिनट, यहीं पे हम लोग को डिफरेंशिएट हो जाता है बिटवीन कौन क्या करने वाला है फ्यूचर में। 7705 वाज द हाई 52 वीक, एंड व्हाट वाज द 52 वीक लो? 2995। सबको राउंड फिगर बोलना एक बार, ठीक है? एक बार राउंड फिगर बोले, स्क्रीन दिखाओ। ऊपर की तरफ 8000, नीचे की तरफ 2295, 2300, और अभी चल रहा है कितना बोले थे? 2000 3300, ठीक है। ये करंट मार्केट प्राइस है। दिस इज द सपोज 52 वीक हाई, मैं राउंड फिगर जानबूझ के बात कर रहा हूं, 52 वीक लो। दूसरे का पैसा जब लगता है ना, तो पता नहीं दर्द फील ही नहीं होते। इसी 52 वीक में ये शेयर 8000 से गिर के 3300 हो गया है, ठीक है? जिसने भी लगाया था स्टॉक में ऊपर की तरफ, वो कैसा बर्बाद हुआ है, ये सामने सामने दिख रहा है। दिस इज व्हाट द चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है? इक्विटी मार्केट का रिस्क सामने सामने आपके है, 8000 से 3300। तो ये जो केन्स टेक्नोलॉजीज है, जब ये ट्रेड हो रहा था 7000 टाइप्स, उस समय ध्यान से सुनना, उस समय इसका जो अर्निंग्स था ना, अर्निंग्स, कंपनी का जो अर्निंग्स है पीएल में, अर्निंग्स से अगर डिवाइड करें प्राइसेस को, तो द प्राइस अर्निंग रेशियो वाज अराउंड 180 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 180 टाइम्स, 180 टाइम्स price earning ratio. Why do you pay for the stock? Because it will earn, na? You pay because it will earn. So we are trying to relate the price to the earning. The earning को जब डिवाइड किए तो it was coming to 180 times, 180 टाइम्स। इसका मैथ्स में डेफिनेशन ये हो गया, अगर तुम स्टॉक को होल्ड करोगे और वो 180 बार कमाएगा एक एक रुपया, तब जाके तुम्हारे घर पे वो पैसा आएगा जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। 180 बार, 180 साल तो तुम जीवित ही नहीं रहोगे, 180 ईयर्स। ये जो मैंने लैंग्वेज बोला, उस लैंग्वेज में क्लियर कट मिस्टेक है कि सर आप ऐसा क्यों मान रहे हो, वो एक रुपया जो कमाएगा सेम रहेगा। बिकॉज केन्स टेक्नोलॉजी वॉज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 40-45% एट दैट टाइम। व्हाट ग्रोथ रेट? 40-45%। तो एक रुपया अभी अर्निंग है, तो नेक्स्ट टाइम 1.45, next time 2 because it gets compounded, next time 2.6, next time 3.3, next time understood? तो अकॉर्डिंगली मैं जो बोला रॉन्ग था, 180 ईयर्स जीना पड़ेगा, वो जस्ट ऐसे बोलने के लिए बोल दिया लाइक यूट्यूबर, ठीक है ना? तो 40-45% जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ के कारण लोग 180 टाइम्स देने तैयार थे, 180 टाइम्स। आगे जाके जब 2026 का फर्स्ट क्वार्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट फिस्कल ईयर, यानी फिस्कल ईयर, व्हेन आई से FY25, व्हेन डिड इट एंड? व्हेन डज FY25 एंड? FY25 कब एंड होता है? 31 मार्च। ओके, 31 मार्च। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 इज अप्रैल में जून, सेकेंड क्वार्टर इज जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है? बिलीव मी, अगर इंटरव्यू टेबल पे बैठे हो और आपको बेसिक्स नहीं पता है, लेवल 1 के बाद इंटर्नशिप में वो सीधा दरवाजा दिखा देगा। तो एनीबडी फीलिंग बोरिंग आउट ऑफ इट शुड नॉट फील बोरिंग एंड यू विल बी एम्बैरेस्ड, ठीक है? फर्स्ट क्वार्टर Q1 FY26, Q2 FY26, Q3 FY26, इनमें जो रिजल्ट्स आया ना केन टेक्नोलॉजीज का, उस पर ग्रोथ डेप्थ प्रॉब्लम्स हो गई। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में है। कौन से बिजनेस में? इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में। इट इज सप्लाइंग दैट टू B2B। व्हाट इज B2B? बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर्स को नहीं बेच रहे। इट इज सप्लाइंग टू ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक मारुति, लाइक टाटा मोटर्स। इट इज सप्लाइंग फॉर डिफेंस, इट इज सप्लाइंग फॉर एविएशन, इट इज सप्लाइंग टू इंडस्ट्रियल,
हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इस बिजनेस में. इट इज़ नॉट अ कैपिटल लाइट बिजनेस. जैसे हमारा एजुकेशन बिजनेस जो है, सपोज हमारा बात नहीं करते, वी टॉक अबाउट PWL फिजिक्स वाला. इट हैज़ अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 35,000 crores right now, the only successful edtech venture in India up till now. बाकी सब क्या हुआ आप लोग को पता है. तो इन दैट केस 35,000 करोड़ उसका मार्केट कैप है फिजिक्स वाले का. उसका कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है. दैट्स द बेस्ट पार्ट. हाई मार्जिन्स, लो कैपिटल इंटेंसिटी. जो भी बिजनेस में कैपिटल इंटेंसिटी नहीं होता है ना, पैसा नहीं लगाना है, बहुत ब्यूटिफुल बिजनेस टू बी देयर, because you are able to manufacture growth without the requirement to raise funds. Because when you raise funds via debt, you become risky. When you raise funds via equity, others come into the room to enjoy the cake. Your equity gets diluted. जो लोग shareholders थे, बाकी लोग को बुला लिए, तो ultimately तो आपका हिस्सा कम हो गया ना. तो all that risk happens. तो Quant Technologies में ये स्थिति था, ये वाला state of affairs था. उसका ग्रोथ क्यों डिप हुआ? वाई डिड द ग्रोथ कम डाउन? सपोज ऑप्शन नंबर 1, इट ग्रोथ केम डाउन बिकॉज द इंडियन इकोनॉमी स्लोड डाउन. बिकॉज द इंडियन इकोनॉमी स्लोड डाउन, ऑटोमोबाइल सेक्टर स्लोड डाउन, इंडियन इकोनॉमी स्लोड डाउन एंड ऑल दैट स्टफ. वर्सेस उसका ग्रोथ स्लो डाउन हुआ बिकॉज उस कंपनी को कुछ कुछ ऑर्डर्स नहीं मिला. कुछ ऑर्डर्स जो चल रहा था ना, वो ऑर्डर्स कैंसिल हो गया. एक कंपनी का ऑर्डर्स कैंसिल हो गया. ये भी हुआ था उसके साथ. तो नाउ वी गो टू ऑप्शन नंबर बी, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क. अगर जीडीपी ग्रोथ गिरने की वजह से केन्स टेक्नोलॉजीज का बिजनेस डाउन हो गया, क्या जीडीपी ग्रोथ गिरने की वजह से केन्स टेक्नोलॉजी का बिजनेस डाउन हो गया, तो जीडीपी ग्रोथ गिरने से क्या केवल केन्स टेक्नोलॉजी को इफेक्ट हुआ या सबको इफेक्ट हुआ होगा? सबको. इट अफेक्ट्स एवरीवन in the system. So therefore it is in English language systematic. What is it? Systematic. Inflation risk, interest rate risk, fiscal deficit का risk, growth का risk, unemployment का risk. Okay, ये सारा risk is systematic, which affects all companies with unequal sensitivity. With unequal sensitivity. A Dr. Reddy's laboratory will not be suffering GDP growth का fall. डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी या रेनबैक्सी, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी के स्लोडाउन से, बट केन्स टेक्नोलॉजी को फर्क पड़ने वाला है. ठीक है, बिकॉज इट इज अ सिक्लिकल बिजनेस, तो उसका सेंसिटिविटी अलग है. तो सिस्टमैटिक रिस्क, डज इट अफेक्ट ऑल कंपनीज? यस सर. डज इट अफेक्ट ऑल कंपनीज इक्वली? नो सर. इट अफेक्ट्स देम विद डिफरेंट सेंसिटिविटी. दैट सेंसिटिविटी इज व्हाट वी कॉल बीटा. दैट सेंसिटिविटी इज व्हाट वी कॉल बीटा, द सेंसिटिविटी. ठीक है. तो ऑन दी अदर हैंड केन्स टेक्नोलॉजी को एक ऑर्डर कैंसिल हो गया, बड़ा ऑर्डर था, 10,000 करोड़ का ऑर्डर कैंसिल हो गया. जैसे ही बाजार में खबर आया, अकॉर्डिंगली द शेयर प्राइस क्रश्ड. ये जो रिस्क है कि मैं एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं और उस स्टॉक में इंटरनली कुछ हो जाएगा जो कि उस स्टॉक को अफेक्ट करेगा, बाकी लोग को नहीं, उसको अफेक्ट करेगा. ठीक है. तो इन दैट केस दैट रिस्क इज अनसिस्टमैटिक. दैट रिस्क इज अनसिस्टमैटिक. तो जो भी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, सॉफ्टली बोले तो इंटरनल रिस्क, दैट इज व्हाट? अनसिस्टमैटिक. और जो सबको अफेक्ट करेगा, दैट इज व्हाट? सिस्टमैटिक. ठीक है. तो जो सेक्टोरल रिस्क होता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट कर रहा है, सेक्टोरल रिस्क, कंपनी का नहीं. सपोज कुछ हुआ आईटी इंडस्ट्री में, जैसे अभी क्या हुआ लास्ट 1.5 साल से इंडियन आईटी, इन्फोसिस, टीसीएस, okay, they all are really in a great pain. Why? Because it is felt that उनको जो बिजनेस मिलता था यूएस से, यूरोप से, ठीक है, वो बिजनेस मिलना बंद हो जाएगा बिकॉज वो कंपनीज एआई से काम करा लेंगे. अंडरस्टूड? दे आर अल्टीमेटली डूइंग ह्यूमन आर्बिट्राज. इन्फोसिस, टीसीएस, दे आर डूइंग ह्यूमन आर्बिट्राज. चीप लेबर है यहाँ पे. ओके, सारे के सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं बेसिक, एंड उनको भेज दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं. ये तो हो रहा है, मैन आवर्स चार्ज कर रहे हैं. दैट्स द बिजनेस. तो सिंस ये बिजनेस के वायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, तो आईटी सेक्टर इज डाउन. ये आईटी सेक्टर का रिस्क है, सारे के सारे इकोनॉमी का रिस्क नहीं है. सेक्टोरल रिस्क इज ऑल्सो अनसिस्टमैटिक. व्हाट इज इट? अनसिस्टमैटिक. समझ गए? तो कंपनी का रिस्क एंड सेक्टर का रिस्क अनसिस्टमैटिक है, इकोनॉमी का रिस्क सिस्टमैटिक है. ठीक है. ट्रंप जो कर रहे हैं,
और जिससे इफेक्ट आ रहा है, व्हाट इज इट, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक, इट्स अफेक्टिंग एवरीथिंग, इट्स अफेक्टिंग एवरीथिंग। देयर आर न्यूज आर्टिकल्स वैसे कल का जहां पे इट इज प्रूवन दैट ट्रम्प जस्ट बिफोर मेजर अनाउंसमेंट्स had bought and sold the shares of Apple and Nvidia billions में। ट्रम्प हैज डन द सेम। तो जो इनसाइडर ट्रेडिंग का एथिक्स वगैरह लर्न करेंगे अपने, उसका सबसे बड़ा थप्पड़ तो यही चल रहा है जो ट्रम्प कर रहा है वहां पे ट्वीट कर करके, समझ गए? बट वही है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एनीवेज, तो सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक क्लियर, बहुत बार काम आएगा, आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया। ठीक है, इन्फ्लेशन रिस्क सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक। इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द एंटायर इकोनॉमी, ठीक है ना? तो मैंने ऑप्शन नंबर बी और सी में टाइम लगाया, बट वो माइंड में आपके गया तो अच्छा है, वो फायदा आ जाएगा बाद में। ओके, डोंट यू वरी अबाउट द सेम। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, सिंस मैंने केन्स के बारे में बोल दिया तो फॉर दोज हु आर रियली रियली इक्विटी ओरिएंटेड, दे गॉट टू डू समथिंग। सुन लेना प्लीज। केन्स टेक्नोलॉजी जिस समय 7700 टाइप्स था, उसी समय देयर वाज अनदर कंपनी ट्रेंट। ट्रेंट तो जानते ही अपने, ट्रेंट जूडियो, ठीक है ना? ट्रेंट, शेयर का दाम एग्जैक्टली याद नहीं है। और ट्रेंट जो है वो भी बहुत हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा था। बोथ वे ग्रोथ स्टॉक्स ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 40-50% एंड द मार्केट्स वाज रियली रेडी टू पे द प्राइस फॉर देम। बट ट्रेंट जो है ना, इट इज जनरेटिंग कैश फ्लो, इट्स अ B2C बिजनेस जनरेटिंग कैश फ्लो। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मार्केट्स फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स। तो ट्रेंड शायद 1000 टाइप था, मेरे को जो याद आता है, एंड उसके बाद भी इट वेंट ऑन टू 6000 एंड देन आई थिंक इट हैज कम डाउन टू 4000 का लेवल्स, अभी चेक करेंगे तो देयर आर टू ग्रोथ कंपनीज, both were priced very heavily by the markets. One company straight away went down and crashed, the other company went on going up and are trying to settle and find some feet. तो इन दैट केस जब ग्रोथ इन्वेस्टिंग का बात होता है ना कि सर हम तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं विच इज टॉक ऑफ द टाउन, आई इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स विच इज टॉक ऑफ द टाउन, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इट इज डेंजरस बिकॉज केन्स टेक्नोलॉजी वाला हाल हो सकता है। तो what is the quality of growth investing which matters and all that is what we will study in the CFA curriculum. But then मेरा बोलने का मतलब क्यों होता है, because there are so many people studying, they want to pick up these two stocks, analyze, okay, put in an article somewhere that we were discussing this and I just got insights about the same, capital intensity matters not matters वगैरह वगैरह, वो बता रहा हूँ। because ऐसा नहीं है कि आप लोग CFA पढ़ रहे हो और जिन लोग का बाद में ड्यू है सुबह से रात तक वही पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो गया। you getting time, you are getting time, and in that free time if you do collateral thing, you do practical, you get interested in the program more and more. Okay, that's always the tryst. संयम पपटारी बोल रहा है सर 4000 नहीं 5600 है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, Meridian Capital purchases a 3-month T-bill. 3-month T-bill is cash or near cash? क्या बात हुआ था अभी? Near cash. 3-month T-bill is not cash. कैश में कोई रिटर्न नहीं मिलता है। It is near cash with a face value of $1,000 for a price of $988. The bill pays no periodic interest. बीच में कुछ नहीं मिलेगा, 3 महीने के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। You are paying 988, you will get 1000. 988 पे कर रहे हैं, मिलेगा 1000 and matures in 91 days, exact 91 days. Using a 365-day year, the annualized yield on T-bill, effective yield पूछ रहा है वो। He is asking for the effective annual yield. Effective annual yield building block classes में भी था, Quant Foundation में भी था। Effective annual yield. जिनको आता है प्लीज कैलकुलेट करो, आंसर बोलो। अभिषेक कुमार is saying 1.21%. ऋतुराज is saying 1.21%. Aryan Gupta is saying 1.21%. 091 आप दे रहे हो 988, आपको मिलेगा 1000। वो पूछ रहा है इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न क्या है पर एनम इफेक्टिव। वर्धन खंडेलवाल A, संयम पोपटानी 4.96, आयुष जायसवाल 4.96, विवेक राजा 1.21। उन लोग को एनुअलाइज्ड वर्ड दिख रहा ही नहीं है। आयुषी 4.96,
शरण्य 4.96, वानिका 4.96, कौशल 4.96, सौम्यजीत 4.872 जो ऑप्शंस में नहीं है, निनाद 4.96, बाकी बोल नहीं पा रहा हूँ। इस क्लास में फेस टू फेस स्टूडेंट्स आप मुंह से बोल सकते हो 4.96। तो फेस टू फेस में जो लोग बोल रहे हैं वो लोग 4.96 बोल रहे हैं। 1.21 तो पक्का गलत है, काट कूट के गलत है, बेशर्मी के जैसे गलत है, ठीक है। इस सम को सबसे बेस्ट तरीका सॉल्व करने का बेस्ट कि 988 इज प्लस माइनस पीवी, 1000 इज एफवी, 91/365 इक्वल टू n CPT I by y। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट। पहले मैं सॉल्विंग का बात कर रहा हूं, फिर एक्सप्लेनेशन बात करूंगा। 988 प्लस माइनस पीवी नेगेटिव, 1000 एफवी। प्लस माइनस क्यों बोलता हूं, मैंने बोलना चाह रहा हूं नेगेटिव करने के लिए आपको प्लस माइनस बटन प्रेस करना पड़ेगा ना, उसलिए बहुत जन को ऑड लगता है। 988 को नेगेटिव पीवी, 1000 एफवी, 91/365 इक्वल टू n। 91/365 इज n पीरियड, CPT I by y। आ रहा है क्या आंसर? 4.96%, 4.96%। अब जिन्होंने 1.21 किया उन्होंने क्या किया सुनना, उन्होंने सपोज कॉमन सेंस लगाया। सपोज मैं तुम्हारे जगह बैठा हूँ फर्स्ट क्लास, तो मैं कॉमन सेंस से जा रहा हूँ। सर 988 लगाए, 1000 मिला, व्हाट आर वी अर्निंग? $12। इसके लिए कोई क्लास नहीं चाहिए। यू आर पुटिंग 988, यू आर गेटिंग 1000, यू आर अर्निंग $12 बाय पुटिंग हाउ मच? 988। सो 12/988 into 100, कैलसी निकालो। 12/988 into 100, 12 divided by 988 into 100, 1.21%। दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो एक सजेशन दे रहा हूँ सबको, खासकर लाइव वाले को, बिकॉज फेस टू फेस वाले बोलते नहीं, उनको मना किया और फिर मुंह से बोलने के लिए इन्फ्लुएंस। लाइव वाले जो भी जल्दी आंसर करने की कोशिश करेगा ना, जल्दी, वो रॉन्ग करेगा। हड़बड़ी को लाइफ से अवॉइड करो। मैंने जैसा बोला, कभी भी CFA लेवल 1 में ऐसा नहीं होगा कि यू विल कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल कंप्लेनिंग दैट टाइम शॉर्टेज हो गया था। तो क्यों जल्दी आंसर करना, क्यों अपने सांस लेके आराम से आंसर नहीं कर सकते हैं? दिस इज द बिगेस्ट एडवाइस टू यू। इफ you have started watching some recorded lectures of derivatives and alternate investment, तो एक बंदे का वहां पे नाम सुना होगा, कौशिक शाह, और नहीं सुना तो सुनोगे और सुन सुन के हंसोगे, हंसते हंसते बेड से गिर जाओगे। बिकॉज व्हेन आई स्पीक आई डोंट मेंटेन फिल्टर्स। तो कौशिक शाह का बहुत लेग पुलिंग मैंने क्लास में किया था, वो उस तरह से बोलता था। लगातार वो जो क्वेश्चन का आंसर बोलेगा ना, वो पक्का रॉन्ग है, ये बात तो श्योर है। वो जो बोलेगा रॉन्ग 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 रॉन्ग। फिर मैंने उसको बोला, आई गारंटी सबके सामने कि कौशिक शाह 100% CFA Level 1 पास होने वाला है, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग करता है। एंड आई टोल्ड दैट वो पक्का पास होने वाला है, बिकॉज ही वाज कंसिस्टेंट, नॉट इन आंसरिंग रॉन्ग बट इन द क्लास। कोई क्लास ही मिस नहीं कर रहा है, कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब वो लगा हुआ है, ठीक है। एंड देन आई टोल्ड हिम दैट प्लीज तुम रुक के आंसर करो, ये आंसर मत करो, तुम्हारा राइट जाएगा। एंड हिज आंसर स्टार्टेड। अभी लेवल 2 में सारा आंसर राइट देता है, पर लास्ट में सब दे देते, उसके लास्ट में देते हैं। टेक योर टाइम, ठीक है ना। एनीवेज, 12/988 सबको समझ में आ गया होगा। द न्यू स्टूडेंट्स 1.21%, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स 1.21%। अब 1.21% मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1.21% का मतलब हुआ 1 रुपी, सॉरी पहले 100 से बता दूं, 100 प्लस 1.21 इज 101.21। इसका मतलब 100 रुपी आफ्टर 91 डेज इज बिकमिंग 101.21। बट 100 रुपी से कैलकुलेशन नहीं होता है, 1 से होता है। तो 1 का 1.0121, इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर, 1 प्लस आर। तो 1 रुपी 1.0121 बनता है एक ठो 91 डेज में। क्या? एक ठो 91 डेज में। तो 2 ठो 91 डेज में क्या बनता है? स्क्वायर। 3 ठो 91 डेज में क्या बनता है? क्यूब। तो वी आर डूइंग पावर 1, पावर 2, पावर 3 टाइम टू रीच 365, ट्राइंग टू रीच 365। तो 91 डेज कितना आता है? 365 डेज में हाउ मेनी टाइम्स 91 डेज कम? 91, 91, 91, 91, how many times in 365? 4.01.
ठीक है, 4.01 टाइम्स, बिकॉज 91 इंटू 4 इज 364, 91 इंटू 4 इज व्हाट 364, इट इज 365 ना, ठीक है। तो इन दैट केस 4.01 टाइम्स, तो सर 1.0121, एक बार 91 डेज में, फिर स्क्वायर दो बार 91 डेज 182 डेज, फिर क्यूब 273 डेज, फिर पावर 4 364 डेज, एक दिन एक्स्ट्रा 4.01। तो ये जो निकला है अभी, ये निकल गया 1 रुपी का फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। व्हाट इज इट? 1 रुपी का फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। इसमें से 1 हटाएंगे बिकॉज मेरे को तो इंटरेस्ट चाहिए, 1 तो प्रिंसिपल था, आई विल रिमूव 1 एंड सुंदर करने के लिए इनटू 100 करेंगे तो आएगा आंसर। प्लीज इस तरह भी ट्राई कर लो। 1.0121 y पावर x 4.01 इक्वल टू 1.0121, फिर प्रेस करोगे y पावर x का बटन है, फिर 4.01, फिर इक्वल टू, फिर -1, फिर इक्वल टू, फिर इंटू 100, कितना 4.94 आया, 96 नहीं आया बिकॉज 365 by 91 एग्जैक्ट नहीं लिए ना, बट ठीक अपना आंसर हो जाता। कहने का मतलब है आंसर 4.96 हो जाता आपका, समझ गए। और भी अप्रॉक्स क्यों हुआ? बिकॉज 1.21 वाज अप्रॉक्स। व्हाट वाज अप्रॉक्स? 1.21 इज नॉट 1.21, वो 1.21 कुछ आया था। अगर ज्यादा डेसिमल में चेक करोगे या इसी बात पे सु मनोहर ने एक बहुत अच्छा चीज बोला है, थैंक्स अ लॉट सु मनोहर, सबको हेल्प के लिए। क्या बोला है सुनना, डेसिमल प्लेसेस जो अपने पुट करते ना, सेकेंड 3 डेसिमल 4 डेसिमल वगैरह, डेसिमल प्लेसेस को 9 ट्राई करना और परमानेंट छोड़ देना 9। डेसिमल प्लेस को 9 ट्राई करने से ना सारा अपने आप ही डेसिमल लेता रहता है। डेसिमल प्लेसेस को 9 ट्राई तो करना, करो एक बार। एक मिनट में भी कैलसी खोल लो। इट इज ऑट टू हियर, बट जब मजा आएगा तो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, सब जन अंदर से उसको थैंक्स करेंगे। तो सेकेंड डेसिमल 9 एंटर CEC, ओके, सेकेंड फॉर्मेट 9 एंटर, ओके CEC। तो बेस्ट पार्ट है वो 9 दिखाता नहीं है, वो अंदर ले लिए है, ठीक है। तो अब अपने जो कैलकुलेशन कर रहे थे यहाँ पे 988, एक मिनट में क्लियर टीवी में कर दो, सेकेंड क्लियर टीवी में, या 988 प्लस माइनस PV 1000 FV 91 डिवाइड बाय 365 इक्वल टू, देखो अब पूरा डेसिमल लिया है वो और दिखता भी है, N CPT I/Y। एरर आ गया मेरा तो कैल्सी ही पता नहीं क्या हो रखा है। आप लोग का आया? आप लोग का आ गया होगा, मेरा कैल्सी भी पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे इसमें। कोई बात नहीं, आप लोग का आ गया क्या? 4.96, तो 4.96% आ गया। ये 9 डेसिमल प्लेस पे लेने से क्या होता है, वो बुरी तरह से 0.0000 दिखाता भी नहीं है, और जहाँ दरकार है पूरा दिखाता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है पूरा दिखाता है, वो एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। यू मे टेक डेसिमल प्लेस 9 एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ नॉट सीइंग डर्टी फिगर्स ऑन द बोर्ड व्हाइल एट द सेम टाइम एक्यूरेसी आती रहेगी, ठीक है, दोनों चीज मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। एनीवेज आयुष बोल रहे हैं हम लोग का आ गया है ठीक है, व्हाटएवर। एक मिनट तो एक्सप्लेन तो कर दूं। ये जो 1.21 वाला मेथड सबको समझ में आ गया होगा फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये वाला मेथड क्या हुआ जो मैंने बोला, लेट्स गो टू द बेसिक्स। ठीक से सुनना प्लीज, कहाँ जाऊं, यहां बता रहा हूं। कैल्सी को तुमने 988 प्लस माइनस PV बोला, कैल्सी समझ गया, ओके ये 988 लगा रहा है, अंडरस्टैंड कैल्सी क्या समझ रहा है, ये 988 लगा रहा है बिकॉज तुमने माइनस बोला। कैल्सी को तुमने 1000 FV बोला, कैल्सी समझ गया, ओ 1000 वापस आ रहा है, ये भी कैल्सी समझ गया। अब कैल्सी को सिंस तुमको एनुअलाइज निकालना है तो तुम कैल्सी को जो n फीड करो नंबर ऑफ ईयर्स, समझ गए। तो ये जो हुआ ये 91 डेज में हुआ, तो 91 डेज इज हाउ मेनी ईयर्स, 91 डिवाइड बाय 365। अब अपने सब जन को गंदगी पसंद नहीं है, तुम लोग को फील नहीं आ रहा है 91 बाय 365। सपोज ये होता 3 महीने में, क्या होता 3 महीने में, तो 0.25 ईयर्स। ये होता 6 महीने में, तो 0.5 ईयर्स। तो वैसे ही 91 बाय 365 भी तो कुछ ईयर्स है,
तो कैलसी को तुम जब 91/365 इक्वल टू n डाले तो उस केस में वो समझ गया ओ ये साल में खेल रहा है, तो वो जो I/Y दिया वो क्या दे दिया, एनुअलाइज्ड। क्या दे दिया, एनुअलाइज्ड। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द सम। और 1.21 क्या था, 1.21 वाज HPY। व्हाट वाज इट, HPY, होल्डिंग पीरियड यील्ड 1.21, बिकॉज होल्डिंग पीरियड वाज 91। आपने कैलसी में n को 1 डाल दो, जैसे n को ये मत डालो, सपोज तुम n को 1 डाले 1n, तो कैलसी को तो बोल रहे हो यही पूरा बस एक पीरियड है, इसका रिटर्न बता, तो बता दिया 1.21%। और तुमको तो एनुअलाइज चाहिए, तो तुम कैलसी में नंबर ऑफ ईयर्स डालो 91/365। ठीक है, ओके। सुमन ओवर संयम पोपटानी तुमको थैंक्स बोल रहे हैं। हाँ A fixed income portfolio manager notes that a particular corporate bond has generated most of its total return through regular coupon payments rather than price movement. एक बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, अदानी वाला, वो जो रिटर्न्स दिया है, वो रिटर्न्स अपने क्या डिस्कस किए, बॉन्ड ज्यादा रिटर्न्स कैसे देता है, प्राइस या कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन लिखाया भी है, पॉइंट नंबर 3 में लिखाया है कि जो बॉन्ड है उस पर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। वही बोला, कूपन पेमेंट से ज्यादा पैसा आया, प्राइस मूवमेंट से ज्यादा नहीं आया। द रिटर्न प्रोफाइल इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, नंबर ए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विच आर हाईली सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स विच बिहेव मोर लाइक इक्विटीज, या शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स विच आर रिलेटिव इनसेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। अगर एक बॉन्ड में मोस्टली कूपन आया है, प्राइस चेंज नहीं हुआ है, तो किसका बात कर रहे हैं, प्राइस चेंज नहीं हुआ है, वो बोल रहा है प्राइस चेंज नहीं हुआ है, किसका बात कर रहा है, ए या बी या सी। यस, आंसर इज व्हाट, पहला बात है विच इज द ऑड वन आउट, विच इज द ऑड वन आउट पूछ रहा हूं, बी। उसको तलाक मार के बाहर करो। सबसे पहले तुमको सबसे मेरे को दिक्कत उसी का होता है, स्टूडेंट चालू कर देता है कौन सा ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट तो आंसर होगा नहीं, समझे, उसको तो हटाओ। अब बचा लॉन्ग टर्म बॉन्ड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड प्राइस वाइज ज्यादा चेंज होता है, लॉन्ग टर्म, तो वो तो हुआ नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं ना प्राइस रिटर्न इज नॉट देयर, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो नहीं सकता है, तो विच इज द आंसर, शॉर्ट टर्म बॉन्ड। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, तो ओके, सी इज द आंसर। केशव लाठी ऐसा कुछ बोला, सर समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट वी पुट एवरीथिंग राइट ऑन द कैलकुलेटर, स्टिल इट गिव्स रॉन्ग। मेरा भी तो हुआ एरर, तो उसको बाद में रिसर्च करना पड़ता है, फॉर्मेटिंग ठीक करना पड़ता है वगैरह। हम लोग को टेलीग्राम कर देना, फोटो खींच के भेज देना, वीडियो रिकॉर्ड कर देना, मेरा ऐसा हो रहा है, हम लोग सबका रिप्लाई करते हैं। और जीपीटी को भी दे सकते हो वैसे तो, फोटो खींच के, दीज आर द प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग, तो वो एडवाइस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिराइव्स इट्स वैल्यू। ओके, ये अलग चीज है, डेरिवेटिव्स हो गया। डेरिवेटिव का फर्स्ट क्लास किसने किसने कर लिया है प्लीज बताइए, जो यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास है डेरिवेटिव का। ओके, फेस टू फेस बैच में आई कैन सी अराउंड 60% कैंडिडेट्स हैव डन द फर्स्ट क्लास, ठीक है। वहां पे लाइव में डेरिवेटिव का फर्स्ट क्लास यूट्यूब से, मेरा फर्स्ट क्लास यूट्यूब से किसने किसने कर लिया है, ठीक है, काफी लोगों ने कर लिया है। एक चीज बोलना था मेरे को उस फर्स्ट क्लास के बारे में, 90-10 का रेशियो है। 90% लोग को वो फर्स्ट क्लास करके एकदम मजा आ जाता है, 10% लोग को लगता है कि एटा की क्योंकि क्लास में मैंने आईपीएल का जो सीरीज होता है ना क्रिकेट, उसके हेल्प से पूरा का पूरा डेरिवेटिव बता दिया। वॉट एवर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्वैप्स, कैप, फ्लोर, जो है भी नहीं सिलेबस में वो भी, विद द हेल्प ऑफ आईपीएल मैचेस। आई विश एंड प्रे कि आप वो 10 में नहीं फॉल करो, बिकॉज इट शुड नॉट सीम लाइक स्टडीज। यू विल फाइंड में एकदम कॉमन सेंसिकल बात करके मैं बात कर रहा था, शर्त कैसे लगाते हैं कोई भी चीज पे, शर्त, टेम्परेचर पे शर्त, क्या बोलते हैं, रन्स पे शर्त, शेयर प्राइस पे शर्त, इंटरेस्ट रेट पे शर्त। डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ बेटिंग, एंड बेटिंग से लगता है ओ मतलब अपने वो सब करते फाटका कर रहे हैं, नो, इट इज यूज्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, इट इज यूज्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट।
It is the strongest vehicle a portfolio manager has to manage the risk in his portfolio because it can be used for the purpose of betting. ठीक है? Do enjoy that class because see, whenever you are in a mood जहाँ पढ़ने का मन नहीं है ना लगे ना पढ़ने का मन अभी नहीं है, वहाँ पे वो क्लास चेक करना, ठीक है? डेरिवेटिव का फर्स्ट क्लास 2 घंटे सवा 2 घंटे का क्लास है, दैट्स अ मस्ट, क्योंकि उसका मेरे को चाहिए. देखो अभी इस चैप्टर के बीच में आ गया डेरिवेटिव, अब मैं डेरिवेटिव थोड़ी बताऊँ अलग से, ठीक है? तो आई विल रिक्वायर दैट सपोर्ट फॉर एवरी वन ऑफ यू. एक और क्वेश्चन करते हैं फिर बंद करते हैं. क्वेश्चन 5, बट एक क्वेश्चन इतना ये आना था, ठीक है? लेट्स सी हाउ कॉमन सेंस विल रन. क्या a US investor buys a euro denominated bond. I'll just give you the figures. एक US investor ने एक बॉन्ड बाय किया euro 1000 का. कितना? euro 1000 का बॉन्ड बाय किया है US इन्वेस्टर. तुम इंडियन इन्वेस्टर सोच लो, तुमने बाय किया यूरो बॉन्ड, इज इट ओके? अपना सोच लो तुम, ठीक है? ओवर द होल्डिंग पीरियड, 1 साल होल्ड किया सपोज, यूरो डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट द डॉलर. यूरो का वैल्यू 1 यूरो वॉज $1.2 और 1 यूरो गिर के हो गया $1.1. इज इट ओके? यूरो डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर. होल्डिंग द बॉन्ड्स लोकल करेंसी रिटर्न कांस्टेंट दिस एक्सचेंज रेट मूवमेंट. अब ये जो बॉन्ड है ना, ये 10% रिटर्न दिया तो आपको मिला 1100 यूरो. कितना मिला? 1100 यूरो. 1000 यूरो था, इट गेव अ 10% लोकल रिटर्न. लोकल माने यूरो का रिटर्न, बट तुम तो लोकल नहीं है, तुम तो फॉरेन है, यूएस है. तो तुम जब इसको कन्वर्ट करेगा तो कौन से रेट से करेगा? 1.1. तो 1.1 से कन्वर्ट करेगा, माने आपने यूरो में इन्वेस्ट किया था और यूरो गिर गया. आपने यूरो में इन्वेस्ट किया था, यूरो गिर गया. क्या लग रहा है? रिटर्न्स विल बी इनहैंस्ड और डिक्रीज्ड? डिक्रीज्ड. Whenever you invest abroad, in that case returns what? अगर वो foreign currency गिरेगा तो returns what? Decrease. तो US investor invested in euro and euro fell. ठीक है? तो in that case कौन सा आंसर होगा? A. Decreases the investor's home currency return. Decreases the investor's home currency return. ठीक है? I tried to pull something or the other out from every question and therefore let me tell you, गोल्ड या गोल्ड का बात करते हैं. गोल्ड एट योर फैमिली लेवल, गोल्ड माइट हैव बीन समथिंग दैट मस्ट हैव बीन इन्वेस्टेड डेलिबरेटली और अनडेलिबरेटली, एंड गोल्ड प्राइसेस फ्रॉम अ टॉकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हैड रियली गॉन अप. अभी का बात नहीं कर रहे, लास्ट 5-6 महीने का, बट गोल्ड प्राइस हैड शॉट अप. गोल्ड फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिया था, आपको याद होगा लास्ट दिवाली के टाइम पे क्या हो रहा था गोल्ड में. इंडियंस जब गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं ना तो इंडियंस को डबल रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि गोल्ड इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर, एंड रूपी ऑलवेज डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट डॉलर. रुपया का भाव गिरता रहता है. तो $1 अगर 90 रुपया था तो $1 96 रुपीज हो गया. तो जो गोल्ड में इन्वेस्ट किया, नंबर 1 गोल्ड का अप्रिसिएशन, नंबर 2 रूपी का डिप्रिसिएशन, बिकॉज इस बार जो फॉरेन डॉलर है वो अप्रिशिएट हो गया ना. तो अदरवाइज अगर चेक करेंगे लास्ट 30, 40, 50 साल गोल्ड का रिटर्न डॉलर टर्म्स में 5% रहा है, 5, और रूपी टर्म्स में इट हैज बीन अराउंड 9%. दिस इज द फैक्ट. तो इंडियंस अर्न अ लिटिल बिट मोर एज अ रिजल्ट ऑफ गोल्ड. तो करेंसी प्लेज अ मेजर रोल. ठीक है, बट मैं ठीक से बोल नहीं पाया करेंसी का, आई डिडंट गेट द टाइम फॉर इट. तो नोबडी कैन से दैट्स द लास्ट वाले करेंसी वाला पार्ट समझ में नहीं आया. आई विल, जब मौका मिला तो मैं उसके बारे में बढ़िया से बोलूँगा. ठीक है ना? ओके. That was the class today. Tomorrow we have a AI का class, AI tools to be used for CFA Level 1, 5 बजे. It is not a face-to-face class because it's being taken by a Vadodara faculty. जो हमारा गुजरात में faculty वो लेगा, ठीक है? प्रवीण sir, he will take the class as a champion as far as AI is used for the purpose of studies. He is doing the same in analyst track also. तो वो लेंगे, तो classroom में कोई मत आ जाना, ठीक है? 5 बजे. Okay, and संडे को इन केस यू हैव सम टाइम 11:30 पे आई एम टेकिंग अ वेबिनार ऑन एआई, क्वांट्स एंड द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस. कि एआई और क्वांट्स कैसे फाइनेंस में यूज होने वाला है फ्यूचर में, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज बन रही है उसके बारे में. हम लोग हॉलिस्टिकली ये सब काम करते रहते हैं बिकॉज वी बिलीव दैट केवल बुक को पढ़ने से करियर नहीं बनेगा. ठीक है? तो ओके, दैट्स इट फॉर नाउ. वी आर मीटिंग मंडे फॉर द नेक्स्ट क्लास, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस.